Hi, so can you please start with your introduction? Yeah, sure. So my name is Ritik. I am from Pulibanga, Rajasthan. I have done my bachelor's in computer science from Dr. D.Y. Patil College of Engineering, Pune. And after doing my bachelor's, I prepared for GATE for 1 year. And after preparing for GATE, I pursued my master's in computer science from IIT Ropar. And after pursuing my master's, I got a chance to work as a junior research fellow, which is the current position that I'm holding for past 6 months. And apart from my academics, I like to riding my bike and reading books. Done. So you completed your bachelor's in which year? 2017 to At 2021, sorry. 2021. Yeah, And your yeah. master's in 2024. 24. Okay, done. So, Ratik, you are from a computer science background, Yeah, right? yes, And the domain you will be entering into IB will be similar to that. You'll be entering into the same domain, right? So, how you think that your education, your master's and your bachelor's, plus the like fellowship experience that you have for 6 months has prepared you for this particular role? so from my bachelor's and all my experience, so as I have done all the work in the technical things, and I know how the things work. Like in the Linux, when I work, I know most of the work that I've done is in the Linux and in the fundamental things, like how the networks work. And in my research fellowship also, my work was in networks. So I know the fundamentals that will help me in the work in my technical field now. Okay, done. So, Ratik, my next question is like, why you want to join IB? Like, what are the factors which motivate you to join IB? So one of the most important factor that I join IB is that I will be able to serve my country and with the one of the prestigious organization of our country. And second thing is the nature of the job that the IB has. That is one of the another reason that I want to join. ओके। ऋतिक, मुझे पहले एक बात बताओ, आपने प्रिपेयर किया है? ना मेरे को आइडिया नहीं था क्या क्वेश्चन होंगे। आज सुबह से ने पीडीएफ भेजा है तो वो अभी जस्ट पढ़ रहा था। अच्छा, ठीक है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whenever we join an organization, जब भी हम एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमें वहां पर डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट? दैट चैलेंजेस विल बी दैट माइट बी रिलेटेड टू सम डिफरेंट फैक्टर्स, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें वो चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ऋतिक, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस है टुवर्ड्स दैट सिचुएशन? I will try to understand what the challenges that I'm facing. Like if I am having difficulty in some software or some other things, I'll first approach my seniors. And if I am unable to get and your seniors are busy, I'll try to find a solution by myself. And I'll work on it and eventually I think I will find a solution for it. Whenever we join IB में दो चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन इज डिसीजन मेकिंग, राइट? Yes. तो how you think that for these two basic skills you will work on like an IB? So from the problem solving part in my past experience in being research fellow, I worked on different problems and we overcome the different problems with the research solutions. And I think that will help me in the problem solving part. And in decision making, we have in my junior research fellow experience also, we have done quite of different things to make a difference in itself. And decision making is a process that comes with the experience also. And I think as gain experience, I will get better in it. ऋतिक, पीडीएफ में आंसर्स पढ़े थे? मैं पढ़ रहा था अभी। पीडीएफ में आंसर्स तो आपने पढ़ लिए, आपने पॉइंट्स भी कुछ उठा लिए, बट आपको वो यूज नहीं करने आ रहे। पहली चीज तो आपकी शक्ल पे मुझे ये चीज दिख रही है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। दूसरा, आपकी वॉइस में मुझे ये चीज पता लग रही है कि आप नर्वसनेस से आंसर्स दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिल में ऐसा लग रहा है कि मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। क्या जो पीडीएफ दी है ना, उस पीडीएफ में ना चीजों को पढ़ो पहले प्रॉपरली, कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है।
और कौन सा कीवर्ड मुझे इस आंसर में यूज करना है। ठीक है। जब हम एचआर की बात करते हैं ना, एचआर बहुत वेटेज रखता है। डन ऋतिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचआर। लेकिन एचआर में आपको पता है फायदा क्या होता है, कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका एकेडमिक्स, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपकी स्किल्स, हाउ यू विल परफॉर्म, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू यू। और सबसे अच्छे तरीके से अपने आप को हम खुद ही प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग बता दूंगी, कैसे बोलना है बता दूंगी, क्या बोलना है बता दूंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से ऐड। पीडीएफ, अब मुझे पता, मैंने आपसे क्यों पहले ये चीज पूछी कि आपने प्रिपरेशन किया नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आप वो पीडीएफ वाले आंसर्स बोल रहे हो। सर्विंग द नेशन, वो बहुत अच्छी लाइंस हैं जो आपको पीडीएफ में दी हुई है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ, वो चाहे लिख लो चाहे याद रखना है। सबसे पहला इज योर इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन का सीक्वेंस होना चाहिए। आपने क्या, आपकी एजुकेशन है वो, आपकी एजुकेशन के बाद आपकी स्किल्स एक्सपर्टीज, आपका ऑलरेडी कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो, वर्क एक्सपीरियंस जो है उससे कुछ सीखा है तो वो, अदरवाइज अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो अपनी जो हॉबीज और इंटरेस्ट एरिया उसको थोड़ा डिफाइन कर। ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना है हमने अपना इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। बस इतना रखना है कि उसके मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मेरे बारे में बताना है मुझे। मैं अपने बारे में यही बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, एंड व्हाट ऑल स्किल्स एक्सपर्टीज इंटरेस्ट आई हैव लर्नड ऑफ, दैट्स इट। ओके। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईबी। इसमें ब्रैकेट में लिख लो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ही क्यों ज्वाइन, या गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। डन। इसके बाद है आपका सॉफ्ट स्किल्स। जब आप आईबी में जा रहे हो एज ए टेक्निकल ऑफिसर भी अगर आप जा रहे हो, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ साथ हमें सॉफ्ट स्किल्स एस्पेक्ट भी देखना होता है। सॉफ्ट स्किल इज योर टोटल ओवरऑल एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी। मैं एंटर कर रही हूँ वहां पे, और मैं किसी इंटरव्यूअर के लाइक इंटरव्यूअर हॉल में एंटर कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है हाउ आई हैव टू ग्रीट, हाउ आई हैव टू सेट, मुझे क्या जेस्चर यूज करने हैं, मेरी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। पहले तो ये चीजें लर्न करनी है। दूसरा, आपकी एक्सपीरियंस है जो सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर आएंगे। ठीक है। आपने 2 साल की पढ़ाई करी है, उसके बाद आपने 6 मंथ्स की जॉब भी करी है। इतने सालों में कुछ तो क्वालिटीज इंप्रूव करी होंगी, कुछ तो स्किल्स हमने इंप्रूव करी होंगी ना। वो स्किल्स हमारी हार्ड वर्किंग हो सकती है, हमारी टीम वाली स्किल्स हो सकती हैं, लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। बस ट्राई ये करना कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जा रहे हैं थोड़ा अलाइन हो वो स्किल्स उनके साथ। जैसे मुझे पता है कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो एसीआईओ की टेक्निकल पोस्ट है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वी आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली सर्विंग द नेशन, लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग तेज होना चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी एक, हमारे अंदर की जो वो होती है ना जील और मोटिवेशन होती है, वो हमेशा अलाइव रहनी चाहिए। ठीक है। जब भी हम किसी नेशन के, आप अपने नेशन के लिए काम करते हैं ना, तो अंदर की जील कभी मरनी नहीं चाहिए। रोज एक नया चैलेंज होगा, रोज नई चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, सो यू हैव टू कीप अप, यू हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सॉफ्ट स्किल्स के ब्रैकेट में रख लो, शुड बी अलाइन विद द पोजीशन जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा कि जब आप एक नई इन्वायरमेंट में जाते हो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। कैसे अडेप्ट करो। ओके। उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको लगता हो कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, लाइक ओके, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने लोगों के बीच में रह के ये चीज जानी है कि लोगों के बीच में अडेप्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप को, इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा ढालना पड़ता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा आपको देखना पड़ता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग। ठीक है। आपको एडजस्टिंग नेचर से होना चाहिए, आपको अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को। ठीक है। आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आपके जो अंदर का एक वो होता है ना, हमारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस नई इन्वायरमेंट में जाके लूज होना शुरू हो जाता है, उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना पड़ता है। ठीक है। नए लोग मिले हैं, महीना 2 महीना इनके साथ काम करके रहना इनके साथ, ये तो थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को और अपने एटीट्यूड को अकॉर्डिंगली। ठीक है। थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा और थोड़ा जो आप खुद हो अपने आप को वैसे ही शो करो।
ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वाला लिख करना है प्रिपेयर, कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आपको आईबी का जो रोल है वो कैसे हेल्प करता है उनको अलाइन कर। ठीक है। अब ऋतिक मैंने आपको ये 4-5 क्वेश्चंस बता दी जिसमें ऑलमोस्ट चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी आपके पास पीडीएफ भी है, उसको गो थ्रू करो, स्नैप्स लगाते रहो, तभी प्रैक्टिस होगी। डन। Yeah. चलो ओके Thank you. ऋतिक, Thank थैंक you. यू।